اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر کوئی گناہ کر دے گا اور اپنے پاس اس کو رکھے گا۔ جب آپ قیامت کے دن آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو صلہ عطا کرے گا۔ تو غور کریں تو سب کچھ ملتا تو اللہ سے ہے، دیتا وہ خود ہی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر آپ اللہ کو قرضہ دو گے تو قرضہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی اور رحمت ہے کہ اپنی دی ہوئی چیز کو بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اب یہ تیری چیز ہے، تو مجھے دے گا کا مطلب ہے میری راستے میں خرچ کرے گا تو اس کا میں تجھے بہتر صلہ دوں گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، من ذلذی، من کون ہے، ذلذی جو کہ یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا، ایسا قرض جو بڑا خوبصورت ہو، حسن یعنی خوبصورت ہو، حسین ہو یعنی بہتر ہو، فیضاعفہ، پس بڑھا دیتا ہے، لہو، اس اس اسے، اضعافاً کثیرہ، اضعافاً کا مطلب کئی گنا، کثیرہ کا مطلب ہے بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ بڑھا دیتا ہے، کوئی گناہ بڑھا دیتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ منتخب کیے ہیں، یہ کئی گناہ بڑھانا وہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے گناہ بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ اللہ کی سب کرم نوازی ہے، یہ اس کی شان ہے، کتنا زیادہ وہ بندے کے اس دیے ہوئے کا صلہ عطا فرمائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقبض، یقبض کا مطلب ہے قبض کرنا، تنگ کرنا، تو اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور اس کو کھول بھی دیتا ہے، فراغ بھی کر دیتا ہے، یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم رجوع کرو گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی جانا اللہ کے پاس ہے سب نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کو قرض حسنا، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے ہاں آپ کا وہ ریزرو ہو جاتا ہے، وہ جمع ہو جاتا ہے بطور قرض حسنا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر قیامت کے دن آپ کو عطا کر دے گا، تو وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اپنے خلوص کے اوپر ہے نا، کتنا زیادہ اس کو بندہ خرچ کرتا ہے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، تو اس کا پھر صلہ اس طرح بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ دل کی حالت کو تو اللہ خود جانتا ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ بڑھا دے گا، اور اگر وَيَبْسُطُ، اور اس کو اگر فراغ بھی کر دے گا، کھول دے گا، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کو بڑھاتا جائے گا، کیونکہ آپ نے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دنیا میں تھوڑا رہنا ہے، جانا تو اللہ کے پاس ہے، لہٰذا اگر اللہ کے پاس آپ
अपने लिए कुछ छोड़ जाओगे तो क़यामत के दिन उसका बहुत बेहतर सिला पाओगे। तो ये अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि आप यहाँ पर अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो उसका सिला बहुत बेहतर पाओगे। बनी इसराइल में एक मियाँ बीवी थे, तो उनका उस उनको उनके पैगंबर ने कहा कि आपका जो है वक्त जो है वो अब 40 साल के बाद आपका रिज्क तंग हो जाएगा। 40 साल आपके अच्छे गुजरेंगे, 40 साल आपके ज़रा थोड़े से गुर्बत में गुजरेंगे, यानी 40 साल ज़रा बेहतर गुजरेंगे, फिर 40 साल गुर्बत में गुजरेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला का करम है, आपने हमें बताया। तो अब जब उनको फिर उस पैगंबर ने कहा कि आपके ऊपर मुनहसर है, आप कौन सा वक्त पहले लेते हैं। इन्होंने कहा हम अच्छा वक्त लेते हैं, यानी बेहतर वाला। तो उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला के हुक्म से आपको बेहतर वक्त पहले मिल जाता है और गुर्बत का वक्त अगले 40 साल मिलेंगे। अब जब उनका पहले 40 साल जब मिल गए तो पहले दिन रिज्क आना शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने दरवाज़े खोले, करम हुआ। तो उस बंदे ने कहा अपनी बीवी को कि ऐसा करते हैं, अल्लाह की राह में हम इसको खर्च करते हैं। अब छोटी देगची ना चढ़ाओ, अब बड़ी देग पकाओ। उसने देगें पकाई और लोग जो भूखे थे, जिनको ऐलान कर दिया आओ खाना खाया करो हमारे पास, वो उसका लंगर चलना शुरू हो गया। अब जब लंगर चलना शुरू हो गया तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने उस पैगंबर को वही फरमाई कि वो बंदे जिनको हुक्म हो गया था कि अगले 40 साल जो हैं उनकी ज़िंदगी के गुर्बत में गुजरेंगे, हमने इस जो उन्होंने रविश अपनाई है कि अपने जो रिज़्क है उसको भी अल्लाह को ही दे दिया है, यानी अल्लाह के वास्ते मखलूक को ही वो अता कर रहे हैं। तो हमने उनके अगले 40 साल जो गुर्बत के थे वो भी अमारत में, अमीरी में, और वो भी भले करती है। तो गोया ये ऐसे ही होता है कि जब बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह उसको बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा खर्च करेगा उतना ज़्यादा अल्लाह उसको और बढ़ा देता है, दुनिया में भी और आखरत में भी उसका सिला ज़रूर मिलेगा। राह खुदा में खलूस नीयत के साथ जब बंदा खर्च करता है तो अल्लाह के यहाँ उसका बहुत अजर पाता है। अल्लाह की राह में एक खुरमा, एक खजूर का खर्च करना, उसका सवाब इतना हो जाता है जितना ओहद पहाड़ है उससे भी बढ़ जाता है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कर्ज देता है, जिसको हम कर्ज हसना कहते हैं, तो वो जिस तरह दो सदके होते हैं ना, सदका एक नहीं, दो सदकों के बराबर उसको सवाब दिया जाता है। इसी तरह से जिसने अपने हक में, यानी कर्ज अगर किसी का था, उसने उसको अच्छे तरीके से अदा कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बेहतरीन शख्स करार दिया है। जिहाद की तैयारी पर खर्च करना अल्लाह को कर्ज देना है। अल्लाह ने ये फरमाया ना, मंज़िल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, तो अल्लाह को कर्ज हसना दो, यानी अगर जिहाद करना है अल्लाह की राह में, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, तो जैसे कि पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया था वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में लड़ो। अल्लाह की राह में लड़ने के लिए तो अब ऐसे तो बंदा नहीं जाता ना, तो उसके लिए कोई हथियार चाहिए, कुछ असला चाहिए, वो चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। और इस तरह से बंदे जो जाएंगे उनके पीछे बाल बच्चे हैं, उनके उनके लिए कुछ ना कुछ छोड़ जाने हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमा दिया कि जो जिहाद है या जो अल्लाह की राह में लड़ना है, उसके लिए भी जो खर्च करेगा, मुजाहिदीन की माली इमदाद करेगा, जिहाद की तैयारी पर खर्च करेगा, हथियार पर और चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं वहाँ उन पर,
تو اللہ ताला उसका भी जो अजर है वो भी बहुत बढ़ा के अल्लाह ताला उनको अता फरमाएगा, यहाँ तक कि 700 गुना से भी ज़्यादा अल्लाह अता फरमा देता है। जो अपना माल अल्लाह ताला से छुपाता है और उसको बचाता है तो उसके पास उसे छीन लेने का इख्तियार भी है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया वल्लाहु यकबिदु, और अल्लाह तंगी भी लाता है। तो अल्लाह ताला जब बंदा अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, अपने दौलत के दरवाज़े पे ताले लगा देता है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसके रिज़्क को तंग फरमा देता है। तो इसलिए अगर बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो वह यब से सोतू तो अल्लाह ताला उसकी फरागी कर देता है, उसको और ज़्यादा अता फरमाता है। अल्लाह की राह में खर्च करने वाले की मिसाल उस दाने की सी है जिसकी 7 बालें होती हैं, फिर हर बाल में से 7 दाने हों, फिर उससे भी 7 दाने, फिर हर देखे ना, हर दाना जो है फिर बाद में वो 100 दाने पैदा करे तो 700 तो बन जाते हैं, और उसके अलावा और भी बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला जितना चाहे अता फरमाता है। हत्ता कि मसनद अहमद में एक हदीस है, उसमें यहाँ तक है कि एक नेकी का बदला अल्लाह ताला 2 लाख नेकियों के बराबर अता फरमा देता है। कर्ज हसना, जो हम लोगों को कर्ज देते हैं, ज़रूरतमंदों को देते हैं, ये भी बहुत अहम है। और यहाँ पर इसलिए फरमाया कि सूद जो होता है ना, वो ये कर्ज दिया अगर किसी को, उसको कहा इतना मैं और लूँगा ऊपर, तो ये सूद बन जाता है, हराम है और अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के मुतरादिफ है। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूद लेता है वो अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करता है। इसी तरह हत्ता कि वो कहते हैं कि सूद के अगर आप 70 हिस्से बनाएं जो बुराई है उसमें, और उसकी छोटी से छोटी बुराई ये है सूद के काम की, लेन देन की, कि बंदा अपनी माँ के साथ बेहयाई करे, बदकारी करे, इतना ज़्यादा गुनाह है। तो इसलिए ये कर्ज़ जो होता है अगर देना पड़ता है तो उसको कर्ज़ हसना बंदा दे। कर्ज़ हसना वो होता है जिस पर कोई सूद नहीं होता। अगर किसी को 10 रुपए दिए हैं, 10 पाउंड दिए हैं, $10 दिए हैं, तो वही 10 ही वापस लेने हैं। तो इस वजह से उसके ऊपर कुछ नहीं लेना। तो ये बात अल्लाह ताला ने फरमा के बयान फरमा दिया, कर्दन हसना, कर्ज हसना देना है। अगर किसी की मदद करेंगे वो भी अल्लाह ही की मदद है। अल्लाह के मखलूक की अल्लाह की मखलूक की मदद भी दरअसल अल्लाह ही के लिए होती है, इसलिए वो भी अल्लाह ताला उसका भी अजर अजीम अता फरमाता है। हर रोज़ सुबह 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। एक कहता है सखी को अल्लाह ताला तू उसका सिला अता फरमा, और दूसरा फरिश्ता कहता है जो बखील है, कंजूस है, उसका माल ज़ाय कर दे, माल उसका तलफ कर दे। रिज़्क जो है अल्लाह ताला बंदे को देता है। बाज़ औक़ात रिज़्क से बंदे की आजमाइश होती है। बाज़ लोगों को रिज़्क देकर आज़माता है अल्लाह ताला, और बाज़ लोगों से रिज़्क लेकर आज़माता है। यानी रिज़्क में कमी कर दी तो उस उनकी आजमाइश हुई, देखता है अल्लाह ताला कि अब वो शिकायत करते हैं कि नहीं। अगर रिज़्क जिसका बढ़ा दिया और वो देखता है अल्लाह ताला कि ये क्या मेरा पहले फर्माबरदार था, अब ये रिज़्क बढ़ा दिया, तो इस रिज़्क से अगर वो बेहयाई, बुराई और गलत और फजूल खर्ची और इन चीज़ों में तो नहीं पड़ गया। इसी तरह से रिज़्क कम हो जाए तो वो बंदा अल्लाह ताला देखता है कि शुक्रगुजार रहता है या नाशुक्री करता है। तो ये रिज़्क की कमी बेशी बंदे की आजमाइश होती है। इसलिए जो है अल्लाह ताला ने बहुत आसान तरीके से इरशाद फरमा दिया कि मन जल्लज़ी युक़रिदुल्लाह, कौन है जो कर्ज दे अल्लाह ताला को, कर्दन हसना, वो कर्ज हसना बतौर, फ़युदाइफ़हु, और अल्लाह ताला उसके कर्ज को, उसके जो दिया अल्लाह को, उसको बढ़ा देता है, लहू उसके लिए, अदआफ़न कसीरा, उसे कई गुना ज़्यादा कर देता है और अपने पास उसको रख लेता है। वल्लाहु यक़बिदु, और अल्लाह ताला
رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے، وہ یبسطو اور اس کو فراغ بھی کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، وہ الیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو اس کا صلہ وہ بندے کے تقوی، بندے کے دل کی حالت، بندے کے خلوص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ بڑھاتا جاتا ہے۔ وہ بندہ اس کو گن نہیں سکتا، کتنا اللہ بڑھا دیتا ہے اور کتنا بندے کو آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں اور قیامت کے دن اس کا بہتر صلہ پائیں۔ آمین۔